Yes. Hello ND aspirants and welcome back to the second of 40 sessions for the English crash course by Ma Tutorials. My name is Anmol and I'll be your guide on this journey through the English language. You must remember, पहला हमने lecture किया था उसमें parts of speech we did, the 8 parts of speech, nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections, and we did one bonus as well, articles which are a part of adjectives, yes, but must be studied separately. क्यों? आज अब हम लोग सेकंड अपना लेक्चर करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का. ये सबसे पहली चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हमारे ग्रामर पोर्शन के लिए. स्पॉटिंग एरर्स बहुत बार सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आता है. क्या मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है वर्ब, अग्रीमेंट कैसी दिखती है उनके बीच में, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे अपने लेक्चर में. सबसे पहले आप देखिए कि ये सारे क्वेश्चंस पिछले सालों में आए हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बेसिस पर. अभी और दिख नहीं रहे यहाँ पे, बट देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस दैट हैव शोड देमसेल्व्स. So we will do all of these because we are doing previous years का question papers. ये सारे के सारे questions हम लोग करेंगे अपने आने वाले lectures में. आज हम लोग सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में. अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में समझने से पहले हमें समझना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस जो होते हैं, there are 5 kinds of sentences in total. 4 kinds are taught usually, 5th is not usually taught, but I will again give you a bonus 5th kind of a sentence today as well. These kind of sentences, it is very important to understand what kind of a sentence one is so that we understand how to identify the subject and the verb and see whether or not the subject and verb are agreeing to each other. So what are these kinds of sentences? These are declarative, interrogative, imperative and exclamatory. And one more bonus which we will do towards the end of the lecture. So let's start first of all with the declarative sentences. अब declarative sentences का अगर आप structure देखोगे तो आपको दिखेगा subject verb object के रूप में होता है. तो ये सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं. अब इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स होते क्या है? दिस सेंटेंस मेक्स ओनली अ स्टेटमेंट और असर्शन एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. इट मे बी अफर्मेटिव और नेगेटिव. कोई भी स्टेटमेंट जो कोई चीज असर्ट कर रहा है, कोई चीज बता रहा है, किसी चीज की जानकारी दे रहा है कि ऐसा है या ऐसा नहीं है, उनको हम लोग डेक्लरेटिव, असर्टिव स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विजयश्री इज प्लेइंग इन द पार्क. ये हमें एक चीज बता रहा है कि भाई विजयश्री इज प्लेइंग इन द पार्क. एक फैक्ट बता रहा है. He may win the race. हो सकता है कि वो रेस जीत जाए. ये भी अगेन एक फैक्ट बता रहा है कि संभव है कि वो रेस जीत जाए. I have no more work. मेरे पास और काम नहीं है. ये भी एक फैक्ट बता रहा है, स्टेट कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है कोई एक सत्य को कि मेरे पास और कोई काम अब नहीं है. शैलेंद्र इज नॉट गोइंग टू द गार्डन दीज डेज. आजकल शैलेंद्र गार्डन में नहीं जा रहा है. शैलेंद्र इज नॉट गोइंग टू द गार्डन दीज डेज. अगेन इट्स अ स्टेटमेंट. They never bring anything with them. वो अपने साथ कभी कुछ नहीं लाते. Again, all of these are statements, assertions, whether they are saying something is or they are saying something is not. Thus, they are called assertive or declarative statements. The next is the interrogative sentences. Now, interrogative sentences, you will see the interrogative sentences. The structures are helping verb पहले आ जाता है, then subject, then the main verb, and then we have the object, which is not nearly necessary, and it always ends with a question mark. We can also have WH words like why. For example, am I playing cricket? क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ? But then I can add WH words also. Why am I playing cricket? मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ? When am I playing cricket? मैं कब खेल रहा हूँ? Where am I playing cricket? मैं क्रिकेट कहाँ खेल रहा हूँ? तो am पहले आया, देखो helping verb. Am I playing cricket? I subject, helping verb के बाद में आया है. So that is the subject's position in an interrogative sentence. Interrogative sentences क्या होते हैं? Sentences that ask a question and always end with a question mark. अब ये एक प्रश्न पूछ रहे हैं. अभी से पहले हमने डेक्लरेटिव किया था. डेक्लरेटिव, they were declaring something, they were asserting something, they were giving an assertion, saying something is or something is not. Now they're asking. This is a question. Every question is another kind of sentence. These are called interrogative sentences. For example, is that his pen? क्या ये उसका पेन है? Do you write stories? क्या आप कहानियां लिखते हैं? Does he play the guitar? क्या वो गिटार बजाता है? Will she win the competition? क्या वो प्रतियोगिता जीतेगी? What is your favorite food? आपका पसंदीदा व्यंजन क्या है? How is everyone? सब लोग कैसे हैं? All of these are questions end with a question mark, hence are called interrogative sentences. The third kind we have are imperative sentences. Now imperative sentences कैसा दिखता है? Imperative sentence शुरू verb के first form से होते हैं, या पहले do not, always, never, please लगता है और फिर verb का first form लगता है. क्यों imperative sentences होते क्या है? This sentence expresses a command, request, order or invitation. अगर आप कोई command दे रहे हैं, request कर रहे हैं, order कर रहे हैं, invitation दे रहे हैं, तो उसको हम imperative sentence कहते हैं. यहाँ आप कोई state नहीं कर रहे कोई fact को, तो डेक्लेरेटिव नहीं हुआ. यहाँ आप कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं हुआ. यहाँ आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या इनविटेशन दे रहे हैं आप. जैसे सिट डाउन ऑन योर सीट, ये कमांड हो गया. सिट डाउन ऑन योर सीट. प्लीज लेंड मी योर नोटबुक. प्लीज से भी शुरू हो सकता है. डू नॉट, ऑलवेज, नेवर, प्लीज है ना. डू नॉट सिट डाउन ऑन योर सीट, ऑलवेज सिट डाउन ऑन योर सीट, नेवर सिट डाउन ऑन योर सीट, प्लीज सिट डाउन ऑन योर सीट.
डिफरेंट थिंग्स, एक चीज में मैं कह रहा हूं करने के लिए, एक चीज में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक चीज में मना कर रहा हूं. प्लीज लेंड मी योर नोटबुक. क्या आप अपनी नोटबुक मुझे देंगे? प्लीज दे दीजिए. डू नॉट स्पिल द मिल्क. दूध ना उड़ेलिए. डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास. घास पर ना चलिए. अटेंशन. अटेंशन में खड़े हुए. अब यहां पे देखेंगे, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, तो याद रखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है. सेकंड पर्सन यू होता है. यू, आप. You sit down on your seat. You please lend me your notebook. You do not spill the milk. You do not walk on the grass. You attention. You कहा नहीं जाता है कभी, कभी कह भी सकते हैं आप, गलत नहीं है, पर अगर नहीं कहा जा रहा है इंपेरेटिव स्टेटमेंट में आप समझ लीजिए सब्जेक्ट हमेशा सेकंड पर्सन होता है, you. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस आपको याद होंगे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से. द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट वी डिड, इंटरजेक्शन, द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस. Such are the sentences, such sentences are called exclamatory sentences. For example, if the sentence is used only to express a strong emotion, it is not giving a fact, it is not asking a question, it is not requesting or commanding. All it is doing is exclaiming. Exclaiming means expressing a strong emotion. Now, if it is expressing a strong emotion of feeling of joy, sorrow, wonder or surprise, it is called an exclamatory sentence. And it usually begins with an interjection. इंटरजेक्शन आपको याद होगा, हमने पढ़ा था पिछले अपने लेसन में. इंटरजेक्शन, फॉर एग्जांपल, हाउ लवली. क्या बात है. अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हम हाउ लवली, कितना प्यारा है, नहीं नहीं, कितना प्यारा है, ये हम बोल रहे हैं. हाउ लवली, हमें लग रहा है ऐसा, हम अपनी खुशी जता रहे हैं. हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. अभी क्वेश्चन नहीं है, वास्तव में ना बताने लगे हमें कि आपकी हिम्मत कैसे हुई. ये एक शब्दाडंबर पूर्ण स्टेटमेंट है जिसका उत्तर नहीं चाह रहा मैं. It is a rhetorical question. It is a rhetorical question. I do not want the answer for it. I am just saying, how dare you? You shouldn't have dared. कैसी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी. Alas, I am undone. Alas, he is undone. Alas, you are undone. You are undone मतलब हो गया तुम्हारा काम. Alas, alas means कि अरे यार, like we say in Hindi, that is alas used for sorrow. Alas is the interjection here, and the entire all of this is the exclamatory sentence. What a nice car. Surprise. What a nice car. क्या प्यारी गाड़ी है. What a nice car. Now what a nice car, I'm not asking a question. I do not actually want you to sit down and start telling me what a nice car it is. It is this much nice, that much nice or whatever. It is this nice or that nice. But no. What a nice car, I'm exclaiming. मैं अपना surprise दिखा रहा हूँ कि क्या प्यारी गाड़ी है. Similarly, what a tragic end. कि बड़ा दुखद अंत. What a tragic end. बड़ा दुखद अंत. बड़ा दुखद अंत. क्या दुखद अंत है यार. So exclamatory sentences, again, exclamatory sentences are sentences in which we express our joy, sorrow, etc. They are not, they will not be relevant in terms of subject-verb agreement. So let's do quickly the revision of the four kinds of sentences: assertive, declarative, जिसमें हम कुछ assert कर रहे हैं, कुछ declare कर रहे हैं. We are making a statement or assertion. Then there is the interrogative sentence, जिसमें question पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक है वो. Then we have imperative sentences जिसमें हम कोई चीज करने के लिए कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, we are ordering or we are giving an invitation etc. Imperative sentences, remember in this the subject is always you, क्योंकि अगर आप कमांड दोगे तो सुनने वाले को ही दोगे, सेकंड पर्सन को दोगे. फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, सेकंड पर्सन इज द पर्सन लिसनिंग, थर्ड पर्सन इज एवरीवन एल्स. So the person who's listening, only you can give a command or you can request something from, or you can order or you can invite. Only the person who's listening. Yes. Then we got the fourth kind, the exclamatory sentence, which we just saw, that are used to express strong feelings of joy, wonder or surprise. The fifth kind of sentence that I promised you is an optative sentence. Now optative sentence expresses a wish or desire. जब आप कोई wish या desire express कर रहे हैं, अब उसमें ना आप declare कर रहे हैं कोई चीज, ना कुछ बता रहे हैं, ना ही आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ना ही आप request कर रहे हैं, और ना ही आप अपने emotions जता रहे हैं. नहीं, आप सिर्फ एक wish कर रहे हैं या अपनी desire बता रहे हैं. For example, happy journey. आप किसी को विश करते हैं हैप्पी जर्नी. मे यू बी ब्लेस्ड विद अ गुड जॉब. भला हो आपका, भला हो, भला हो. विश यू अ वंडरफुल डे. मे यू सक्सीड इन ऑल योर एंडेवर्स. एंडेवर्स मतलब ऑल योर टास्क्स. जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी काम आप उठा रहे हैं अपना, वो एंडेवर है आपका, उसमें आप सक्षम हो, सक्सीड करें, सक्सेसफुल हो. लेट द वर्ल्ड बी अ पीसफुल प्लेस. काश दुनिया एक शांति प्रिय जगह बन जाए. Wish you many happy returns of the day. Happy birthday. All the best. All of these are wishes. These are optative sentences. Again, not relevant in terms of subject-verb agreement.
अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग ये सेंटेंस को, अगर दिया हुआ है तो कैसा सेंटेंस है भाई? अगर वो कोई फैक्ट स्टेट कर रहा है तो डिक्लेरेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंटेरोगेटिव है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो इंपेरेटिव है, इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है तो एक्सक्लेमेटरी है, और अगर एक्सप्रेस कर रहा है किसी विश को तो फिर ऑप्टेटिव है। और उसी के अनुसार फिर आपको आगे उत्तर देना होगा अगर ऐसा पूछा जाता है कौन से टाइप का सेंटेंस है। पर अभी हम लोग ये को कर रहे हैं ताकि वी कैन आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। Basically, we identify what kind of a sentence it is. We should be able to understand that there are these many kinds of sentences, different kinds of sentences, and then how to identify the subject or the verb in the relevant sentences. For example, let's see. I hope your future is filled with exciting opportunities. अब यहाँ पे देख के लग सकता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, पर यहाँ पे I hope में यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये ऑप्टेटिव। May your future be filled, तब होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। May your future be filled with exciting opportunities. I hope ये डिक्लेयर कर रहा हूं मैं कि मैं ये आशा करता हूं, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं ये बात, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। Have you considered studying abroad for college? क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? You. The earth revolves around the sun, अगेन डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? Earth। वर्ब क्या है? Revolves. May your dreams and aspirations come true. अब यहाँ पे हमको उससे मतलब नहीं है क्योंकि एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। May your dreams and aspirations come true. What a fantastic performance by the local theatre group. Again, exclamatory sentence, not relevant to subject verb agreement. Please pass me the salt from the kitchen counter. You. Please pass me the salt from the kitchen counter. Subject is you. And this is an imperative statement. Alright, now we will dig right into the crux of our lecture today. Subject verb agreement. For example, now we will understand what subject verb agreement means. सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के अंदर क्या होता है? एक होता है वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल क्वालिफिकेशंस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंडिंग ऑन वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ये सब चीजें हम जब वर्ब्स एडवांस्ड का लेक्चर आएगा तब और ज्यादा समझ पाएंगे। अभी हम बस ये समझ लें कि सेंटेंस बनता है दो हिस्सों का, सब्जेक्ट का और प्रेडिकेट का, और प्रेडिकेट में होता है वर्ब नेसेसरीली। बिना वर्ब के प्रेडिकेट नहीं बनेगा, प्रेडिकेट में वर्ब होना आवश्यक है, और प्रेडिकेट होना आवश्यक है सेंटेंस बनाने के लिए। सिर्फ सब्जेक्ट होगा तो या तो वर्ड होगा या फ्रेज होगा, क्लॉज बनेगा ही नहीं, और क्लॉज ही सेंटेंस बनता है बस क्लॉज के आगे फुल स्टॉप लगा देने से। क्लॉज के आगे फुल स्टॉप, इट बिकम्स अ सेंटेंस। सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ द एक्शन, एक्टिव वॉइस। अब सब्जेक्ट होता क्या है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, दो वॉइसेस है जो हमें याद है भाई। अगर नहीं है तो एक्टिव पैसिव भी हम लोग करेंगे आगे लेक्चर्स में। एक्टिव पैसिव कैसा दिखता है? एक्टिव मतलब आई प्ले क्रिकेट, पैसिव मतलब क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। एक्टिव क्या हो गया? मैं खेलता हूं क्रिकेट, पैसिव हो गया क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। तो एक्टिव में जो सब्जेक्ट है मैं, आई प्ले क्रिकेट, उसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं, डूअर ऑफ द एक्शन, जो कर रहा है कार्य को। आई प्ले क्रिकेट, कौन खेल रहा है? क्या हो क्या रहा है? क्रिकेट खेला जा रहा है। कौन खेल रहा है? मैं खेल रहा हूं। तो आई इज द सब्जेक्ट इन दैट सेंटेंस। उसी प्रकार अब पैसिव वॉइस में क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस में बोलते हैं क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा रहा है। तो पैसिव वॉइस में अब जो जिसके ऊपर कार्य हो रहा होता है, क्या कार्य? खेला जा रहा है। कौन खेला जा रहा है? क्रिकेट खेला जा रहा है। तो पैसिव वॉइस में क्रिकेट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। So लिखा है यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट द डूअर ऑफ द एक्शन इन द एक्टिव वॉइस एंड अपॉन whom or which the action is done in the passive voice। जो एक्शन कर रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन एक्टिव वॉइस में, और जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, अपॉन whom or which the action is done in the passive voice। अब एक्टिव पैसिव हम लोग आगे करते रहेंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? अब मेन चीज हमारी भाई सब्जेक्ट वर्ब समझ गए, हम समझ गए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन एक्टिव वॉइस में, अपॉन whom or which the action is done पैसिव वॉइस में, और वर्ब होता है, अभी वर्ब हमने पिछले दिन देखा था, वर्ब इज द एक्शन वर्ड, जो मेन वर्ब, जो मेन एक्शन बता रहा है आपको सेंटेंस का। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मतलब क्या होता है? दोनों के बीच में अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट है तो वी अंडरस्टैंड दैट यस वन पर्सन अग्रीज विद अनदर पर्सन, दैट मींस दैट व्हाटएवर द वन पर्सन इज सेइंग द अदर पर्सन सेज यस टू इट, दैट दे आर आल्सो सेइंग द सेम थिंग। That means agreement between two people, but what is the agreement between subject and verb? Well, it means that the subject and verb must agree in number and person. Number and person मतलब number इंग्लिश में तीन होते हैं, first person number इंग्लिश में दो होते हैं, singular और plural। तो भाई singular अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर रूप में होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल रूप में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आई के साथ क्या लगेगा? आई एम प्लेइंग क्रिकेट लगेगा, आई एम प्लेइंग, और अगर यू लगेगा तो क्या लगेगा? यू आर प्लेइंग। तो ये हो गया अग्रीमेंट। अब मैं अगर यहाँ पे कह दूं कि आई आर प्लेइंग, तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट आना चाहिए। यू के साथ आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, ही शी के साथ क्या लगेगा? इट लगेगा, इज लगेगा, ही इज प्लेइंग। सिमिलरली शी इज प्लेइंग एंड इट इज playing। तो he she it is
I के साथ am, you, they, we के साथ are. You are playing, we are playing, they are playing. We'll do all of this. Just now understand कि subject और verb के बीच में agreement का मतलब क्या होता है. Subject and verb must agree in number and person. Number हो गया singular plural, person हो गया first person, second person, third person. For example, now first person means I and we. ये हो गया first person के pronouns. Second person हो गया you, आप, और third person हो गया she, he, it और they. अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, प्लूरल वी है. अगर मैं अकेला हूं तो आई बोलूंगा, मेरे साथ और भी लोग हैं तो वी बन जाएंगे, हम लोग, मैं और हम, फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन यू, आप चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे 10 हो, मैं आपको यू बोल सकता हूं. ऑल ऑफ यू कह सकता हूं, दो हो तो बोथ ऑफ यू कह सकता हूं, बट यू नहीं बदलेगा. आई, वी, यू. और हम, हमारे अलावा बाकी सब लोग, कोई महिला है एक एक तो शी, सिंगुलर फीमेल, फेमिनिन शी, सिंगुलर मैस्कुलिन ही, सिंगुलर न्यूट्रल जेंडर इट, and singular and plural third person they. तो she, he, it and they are the third persons. तो ये 3 तरह के पर्सन होते हैं हमारे, 2 तरह के नंबर होते हैं. इन दोनों के आधार पर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इन दोनों के आधार पर एक कंफॉर्मिटी होनी चाहिए. अब ये कैसी दिखती है कंफॉर्मिटी, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. सी नाउ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, फर्स्ट केस वी विल सी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो होते हैं, ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट्स. अब जो ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर जो है उसको हम लोग सिंगुलर ट्रीट करेंगे. अगर सिंगुलर ट्रीट करेंगे इसका मतलब क्या होगा, आर नहीं लगेगा उनके साथ, इज लगेगा. प्ले नहीं लगेगा उनके साथ, सिंपल टेंस में प्लेज लगेगा. फॉर एग्जाम्पल दे के साथ क्या लगता है, दे प्ले, बट शी के साथ क्या लगेगा, शी प्लेज. क्यों, शी सिंगुलर है. सिंगुलर फॉर्म का वर्ब जो होता है उसमें एस लगता है, शी प्लेज. अब ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए जाते हैं. तो यहां देखेंगे, अब अभी पिछले सालों में से हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, इसमें देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है. अब नीदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम टू अफेक्ट हिम. अब यहां नीदर यूज हुआ है, नीदर प्रेज नॉर ब्लेम, तो एक एक चीजों के बारे में बात हो रही है एक एक करके. तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने अभी देखा वर्ब जो है सिंपल टेंस में वो एस फॉर्म वाला लगता है, तो यहां सीम्स होगा. Neither praise nor blame seems to affect him. He asked whether either of the brothers were at home. Were नहीं, were use होता है plural के लिए. Either of the brothers यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, either. Either उन दोनों में से कोई एक था क्या, या उन दोनों में से कोई एक थे क्या. नहीं, थे तो दोनों थे, या तो दोनों थे, या उनमें से कोई एक था. तो था was at home. Either he or I are wrong. are नहीं, I के बाद अगर यहाँ पे आएगा तो am आएगा. दूसरे वाले को देखेंगे, अब 2 अगर प्रोनाउंस दिए हो यहाँ पे either के साथ, so the closest pronoun will be the closest pronoun will become the main subject, and the verb should agree with that pronoun, the one which is closest to it. For example, either he or I am wrong. Neither of the candidates are good. नहीं, neither of the candidates, neither singular की तरह ट्रीट किया जाता है, हमने अभी देखा, is good. Each of them are a good player. No, each again we just saw is treated as a singular. Each of them is a good player. तो ये एक तरीका है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपका एग्जाम में आज तक देखा गया है. पिछले 10 सालों में ये 5 क्वेश्चंस आए हैं. संभव है कि अभी फिर से आए. सिर्फ एक केस है, सिर्फ एक केस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पिछले 10 सालों में 5 आए हैं. अगले केस में देखिए, अगले केस के और ज्यादा आए, अगले केस के और ज्यादा आए. एम्बिगुअस कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट, अगला केस क्या है, अब इसमें कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आता कि कौन सा है. इतना लंबा सेंटेंस दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन नील है, सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा इसमें है क्या, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसमें. अब उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करें वर्ब्स को. अब वर्ब्स आइडेंटिफाई करेंगे, वर्ब्स कहां पे, एक्शन वर्ड्स कहां पे, और फिर उन वर्ब्स के आप सब्जेक्ट वर्ड ढूंढिए कि वो वर्ब क्या पूरा जो सब्जेक्ट है उसमें से मेन वर्ड कौन सा है सब्जेक्ट का, एक वर्ड कौन सा है जो हमें देखना है. सब्जेक्ट वर्ड मींस द मेन वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट एंड चेक अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जांपल वी विल सी with regard to interior decoration, it is. अब is पहला वर्ब आया है, पर वो it है, यहाँ पे सब्जेक्ट सही है, it के साथ is लगता है. Attention given to the less overt aspects of using space that give is one. It life and identity, a quality that makes is one. It exciting and unusual. Makes सही है क्योंकि that singular है, singular के साथ makes लगेगा. अच्छा, that give, that के साथ singular लगना चाहिए, तो give नहीं, यहाँ क्या होगा,
gives. क्यों? क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है the attention. मेन वर्ड क्या है यहाँ पे? attention. देखना, with regard to interior decoration ये एक अलग पार्ट हो गया. It is the attention. क्या है? It is the attention. The attention given to less overt aspects of using spaces that gives it. जो अटेंशन, क्या? इंटीरियर डेकोरेशन. इंटीरियर डेकोरेशन आपको पता है, अंदर जो घर के अंदर का या किसी ऑफिस के अंदर की चीजों को डेकोरेट करना और कैसा वहां पे माहौल होना चाहिए, उसके अनुसार इट इज द अटेंशन गिवन टू द लेस ओवर्ट एस्पेक्ट्स ऑफ यूजिंग स्पेस. लेस ओवर्ट मतलब लेस ऑब्वियस. अब सबसे ऑब्वियस क्या है कि भाई दीवार का रंग क्या हो, फर्नीचर कहां रखा हो, कैसे यूज हो रहा हो, आकार क्या हो, शेप उसका, रूम का, ये सब ऑब्वियस चीजें हैं. लेस ऑब्वियस क्या है? अब लेस ऑब्वियस हो गया कि भाई थीम क्या होनी चाहिए, कॉटेज थीम हो, ब्रूटलिज्म हो, मिनिमलिज्म हो, आपका कंटेम्प्रेरी हो, आर्टिस्टिक हो, क्या थीम उसमें आए जो अलग हम कैसे कर सके, नेचुरल हो, बिल्कुल कंटेम्प्रेरी वी ऑलरेडी सेड, और इन व्हाटएवर वे, व्हाटएवर डिफरेंट थिंग्स दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन. ये जो माइन्यूट डिटेल्स है, इस पर जो अटेंशन हम देते हैं वही उसको देता है क्या? एक लाइफ देता है, जीवन देता है इंटीरियर डेकोरेशन को. इंटीरियर डेकोरेशन में एक्साइटमेंट लाता है, आइडेंटिटी देता है, उसको क्वालिटी देता है, एंड मेक्स इट एक्साइटिंग एंड अनयूजुअल. और उसको एक्साइटिंग और थोड़ा विचित्र बनाता है इंटीरियर डेकोरेशन को. वरना इंटीरियर डेकोरेशन कौन ही करवाता है अपने घर में? बहुत कम लोग करवाते हैं. तो जो टॉप व्यक्ति जो जिनके पास है वैसा धन, वो इंटीरियर डेकोरेटर्स अलॉट करते हैं और असाइन करते हैं. अन्यथा सारे घर एक जैसे, वही दीवारें हैं, वही फर्नीचर है, कलर थोड़ा बदल जाता है, थोड़ा कुछ बदल जाता है, कोई लोग पीओपी करवा लेते हैं, कुछ करवा लेते हैं, बट लेस ओवर्ट एस्पेक्ट्स. और जो गहराई में अगर आप देखोगे, उसके बारे में जानोगे कि कैसा होना चाहिए, वही चीज है जो इंटीरियर डेकोरेशन को एक्साइटिंग बनाती है. तो यहाँ पे कंफ्यूजन था सब्जेक्ट ढूंढना. पहले वर्ब आपने ढूंढना था, फिर वर्ब का देखना था आपने कि कौन से सब्जेक्ट के बारे में वो बात करना है. तो दी अटेंशन सिंगुलर है तो गिव्स होगा वहां पे. A time slot of 15 minutes are allowed to each speaker. अब R लगा हुआ है यहाँ पे किसके बारे में? टाइम स्लॉट के बारे में. मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा? टाइम स्लॉट. तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या होना चाहिए? इज अलाउड टू ईच स्पीकर. द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैज सेल्डम बीन सीरियसली स्टडीड आउटसाइड इंडिया. द प्रैक्टिकल यूजेस, अब यूजेस हमारा मेन सब्जेक्ट वर्ड है, तो यूजेस प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैज नहीं, हैव होना चाहिए. The Olympic Games reflects the highest spirit of human endeavor and achievement. Again, the Olympic Games is the main subject. It is in plural, so plural will not have an S. This will become reflect. The Olympic Games reflect the highest spirit of human endeavor and achievement. अच्छा, ये आइडेंटिफिकेशन स्पॉटिंग एरर्स वाले क्वेश्चन है, जो सारे ब्रैकेट्स हैं, ये एक ऑप्शंस है. द फर्स्ट ब्रैकेट इज A, सेकंड ब्रैकेट इज B, थर्ड ब्रैकेट इज C, एंड D इज नो एरर. नो एरर वाले मैंने डाले नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग एग्जांपल्स कर रहे हैं उनके एरर्स के, सो डी का कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे भी. Failure is the stepping stone to success. However, successive failures is not successive stepping stones to success. Again, successive failures plural is नहीं होगा, are होगा. क्या बोल रहे हैं? Failure is the stepping stone to success. जब आप हारते हैं तो वो एक पड़ाव बनता है जीतने का, परंतु बार बार हारना बार बार जीतने का पड़ाव नहीं बनता है. हारने के बाद जीतना जरूरी है, फिर कभी कभी अक्सर. Over long periods of time, layers of sediments builds up to a height of a few kilometers. ये sedimentary rocks के बारे में बात कर रहे हैं अब. Layers of sediments, layers है, layers plural है, तो builds नहीं होगा, build होगा. Over long periods of time, layers of sediments build up to a height of a few kilometers. Now the student with his friends were prepared for the exam. अब यहाँ पे देखकर लग सकता है कि सब्जेक्ट प्लूरल बन गया है, with his friends. अगर with his, along with, as well as ये सब चीजें लगी हुई हैं, तो मेन सब्जेक्ट हमारा फिर पहले वाला ही नाउन रहेगा. अगर यहाँ पे तो स्टूडेंट एंड हिज फ्रेंड्स हो जाता तो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता, फिर वर प्रिपेयर्ड सही हो जाता. बट द स्टूडेंट विद हिज फ्रेंड्स वाज प्रिपेयर्ड, क्योंकि हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स को सिर्फ जोड़ा हुआ है उसके साथ, विद हिज लगा के, एंड लगा के नहीं. अगर होता तो स्टूडेंट एंड हिज फ्रेंड्स, then it would have been were prepared, because a conjunction would have made the subject plural. My uncle and president of the club are coming in the evening. अब यहाँ क्या my uncle and president लग सकता है कि दो अलग अलग चीजें हैं, पर नहीं है. अगर यहाँ पे the president होता तो अलग अलग योग होते. अगर my uncle and president है, president के पहले आर्टिकल नहीं लगा, इसका मतलब मेरे अंकल ही president है. एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है. My uncle and president of the club is coming in the evening. Ram और श्याम go to the market every day. अब राम और श्याम लगा है तो मतलब दोनों में से एक की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, तो सिंगुलर है. सिंगुलर है तो राम और श्याम गोज होना चाहिए. सिंगुलर के लिए es वाला फॉर्म लगता है वर्ब का सिंपल प्रेजेंट में. The whole class including the new students were busy with its work. Again, क्लास के बारे में बात हो रही है, एक क्लास के बारे में.
including the new students, yeah, sure, but it is not adding, it is not changing the subject. Subject would still be the singular class. That is why were की जगह होगा was. The whole class, including new students, was busy with its work. There was many animals in the 7th century. No, there were many. Why? Because we're talking about many animals now. So there were many animals. Pringles are one of the many brands of potato chips in India. ये मैंने अपने आप से दिया है, ये पिछले एग्जाम्स में नहीं था, but just to prove one point that Pringles, सुन के लग सकता है कि प्लूरल है, Pringles एक कंपनी है, एक कंपनी है, तो इसलिए Pringles is one of the many brands of potato chips in India. ये सेकंड केस देख लिया हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का. लेट्स गो टू द थर्ड केस. रिविजन के लिए प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गोइंग बैक एंड चेकिंग द लेक्चर अगेन और पॉजिंग वेरेवर यू फील यू हैवंट अंडरस्टूड समथिंग एंड रिवाइंडिंग, गोइंग थ्रू दैट पार्ट अगेन. जब एक एक पार्ट आपको क्लियर हो जाए उसके बाद ही आगे बढ़िएगा. जब एक पार्ट क्लियर हो जाए उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, तब तक उसको देखते रहिएगा. ऑलराइट, कलेक्टिव नाउन. अब हमारा आ गया केस 3. केस 3 आ गया कलेक्टिव नाउन्स के बारे में. कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, class is a collective noun. An army of soldiers, army is a collective noun. Now you will see a small parcel of novels are better than none. So they are usually treated as singular. ज्यादातर हम collective noun, जब तक collective noun जैसे armies, the different armies of India, China, Pakistan, Russia, US बात कर रहे हैं तो armies बन जाएगा, तब उसको हम प्लूरल बना देंगे. और अगर सिर्फ इंडिया की आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन आर्मी, तो आर्मी सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा उस टाइम पर. अब यहाँ पे देखो, जैसे एग्जांपल्स हम देख रहे हैं पिछले सालों में से फिर से. A small parcel of novels are better than none. नहीं, a small parcel main word क्या बन रहा है? Parcel. तो क्या बनेगा ये? Is better than none. A company of 5,000 soldiers having marched tirelessly for over 5 days have just moved into their cantonment. Have just moved. A company singular है, has just moved. अब company चाहे 5,000 soldiers की है भले, पर company singular है. मेन सब्जेक्ट हमारा कंपनी है, वो सिंगुलर है. कंपनी of 5,000 soldiers having marched tirelessly for over 5 days has just moved into their cantonment. Nursery classes for the children starts on April every year. No, classes plural, तो starts नहीं होगा, start होगा. The pile of books are missing. Again, pile singular is missing. $10,000 are the prize money being offered by the game show hosts. नहीं, हमने देखा था, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया इसको, इसको R बना दिया, इस था उसमें सही था वो. $10,000 is the prize money being offered by the game show hosts. Sometimes due to context they can be treated as plural. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, किसी संदर्भ के अनुसार उनको प्लूरल के रूप में भी ट्रीट किया जा सकता है, उनको बहुवचन के रूप में भी ट्रीट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, I can say the many armies of India, Pakistan, China, Russia and US are hoping that World War III will not commence. Obviously they're hoping, everybody hopes, nobody hopes so. Only people who are safe, far away from the battlefield, sitting in an AC air-conditioned room, they're deciding whether or not war should happen or not. I don't think war should happen, but alas, such is the case that we have in humanity. Sometimes due to context, they can be treated as being plural. For example, at the request of the defense attorney, the jury was called and their individual verdicts were recorded. अब यहाँ पे क्या केस स्पेशल बन रहा है? यहाँ पे jury के बारे में बात हो रही है. jury क्या होता है? jury होता है group of judges. जजेस का एक झुंड, जज जो होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, उन लोगों का एक झुंड, उसको हम लोग जूरी बोलते हैं. जूरी ऑफ जजेस was called. वैसे तो जूरी सिंगुलर ही ट्रीट की जाती है क्योंकि वो एक साथ एक काम कर रहे हैं, पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? उनके इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स के लिए उनको बुलाया, उनके इंडिविजुअल वोट्स के लिए, उनके एक एक वोट के लिए, अलग अलग वोट के लिए, उनके व्यक्तिगत निर्णयों के लिए उनको बुलाया गया था, लिए गए थे. नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट देम सेपरेटली, को अलग अलग उनके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम उसको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे, तो जूरी वर हो जाएगा यहाँ पे. ये स्पेशल केस है. टीम के बारे में जैसे अगर हम बात कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेकिन से द टीम इज प्लेइंग रियली वेल, द टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज प्लेइंग रियली वेल, बट देन अब उनके बीच में अगर मुठभेड़ हो गई और टीम डिवाइड हो गई, तो मैं कह दूंगा द टीम आर डिवाइडेड अमंग्स देमसेल्व्स. यस, द टीम आर डिवाइडेड अमंग्स देमसेल्व्स. ऑलराइट, नाउ वी हैव केस 4 एज वेल एज. अब एज वेल एज अगर कहीं पे लगा होगा तो सब्जेक्ट क्या बनाएगा? कौन सा सब्जेक्ट माना जाएगा? Always check the number of the antecedent. Antecedent क्या होता है? जो as well as के पहले आया है. What comes before as well as. अब as well as जो लगा हुआ है उसके पहले जो भी आया है उसको हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं. उस एंटीसीडेंट का नंबर आप चेक करेंगे, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है. वो अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है पूरा, वो अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल है. फॉर एग्जांपल, द ओनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स आर ऑनेस्ट. अब एज वेल एज यहाँ पे उसके पहले एंटीसीडेंट क्या है? ओनर. ओनर क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है. ओनर सिंगुलर, तो आर नहीं लगेगा, इज लगेगा.
द ओनर एज वेल एज द सर्वेंट्स इज ऑनेस्ट. सो एज वेल एज अगर कहीं पे दिख रहा है तो उससे पहले वाला जो एंटीसीडेंट है उसको हम लोग चेक करेंगे. और केस 4 डन. केस 5 वन ऑफ. अब वन ऑफ अगर लगा हुआ है तो क्या मतलब होता है उसका? वन ऑफ मतलब में से एक. तो में से एक मतलब किसमें से एक? तो जिसमें से एक, वो एक तो नहीं हो सकता, वो एक से ज्यादा होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए. तो इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल. मतलब वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आएगा एक, कि वन ऑफ द थ्री, वन ऑफ देम, वन ऑफ दोज, वन ऑफ द पीपल, वन ऑफ द चिल्ड्रेन, नॉट वन ऑफ द चाइल्ड. चाइल्ड तो सिंगुलर है. एक में से एक का क्या मतलब है? कुछ में से एक लेंगे ना. वन ऑफ में से एक, कितने में से एक, वो प्लूरल होना चाहिए. बट वन ऑफ अपने आप एक है, एक ही लिया गया है, तो इसका मतलब वो खुद में सिंगुलर है. तो वन ऑफ समथिंग, समथिंग व्हाट, समथिंग प्लूरल, बट वन ऑफ इज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर. हाउ? लेट्स सी. This view has been taken by one of the ablest persons who have written on this subject. Now, one of the ablest persons who have written for this subject, and Rahim was one of that selected for the award. इन दोनों में हम लोग थोड़ा एक चीज और देखेंगे. This view has been taken by one of the ablest persons. अब one of the ablest persons, one of follow किया जाएगा plural द्वारा. तो यहाँ persons है, सही है, plural है, ये बिल्कुल सही है. अब who have written on this subject, who have written on a subject, अब one of की बात हो रही है या ablest persons की बात हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि have लगेगा कि has लगेगा. फॉर एग्जाम्पल if I say this view has been taken by one of the ablest persons who has written on this subject, तो मतलब मैं ये one of इसके लिए यूज कर रहा हूं कि this view has been taken by one of the ablest persons who has written on this subject. Now Rahim was one of that. One of should be followed by a plural, so one of those selected for the award. One of followed by a plural, you see it should be followed by a plural. One of that नहीं, one of those होना चाहिए. That का plural is those. Except when the verb relates to the plural that follows. For example, अब क्या कह रहा है वो? One of the students who plays cricket is absent. One of the students who plays cricket is absent. यहां पे हम बोल रहे हैं कि एक उन स्टूडेंट्स में से जो क्रिकेट खेलते हैं, उन स्टूडेंट्स में से जो क्रिकेट खेलते हैं, ये इज जो यूज हो रहा है, ये वन ऑफ के लिए यूज हो रहा है. ये जो प्लेज है ये स्टूडेंट्स के लिए यूज हो रहा है. स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लेज नहीं लगेगा, प्ले लगेगा. वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट इज एब्सेंट. उनमें से, किनमें से? वन ऑफ अ ग्रुप. Which group is that? The group of students who play cricket. This is the entire group जिसमें से एक बच्चा एब्सेंट है. अब मैं ये क्या कह सकता हूं? One of the students is absent. मैं कह सकता हूं one of the students plays cricket. ये देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेज क्रिकेट, मतलब जो स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप है उसमें से एक खेलता है क्रिकेट. तो जो एक खेलता है ये प्लेज इज इन अग्रीमेंट विद वन ऑफ, वन व्हिच इज वन सिंगुलर. यहां पे भी वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, ये इज इन अग्रीमेंट विद वन. पर यहां जो हम प्लेज क्रिकेट कह रहे हैं ये प्लेज क्रिकेट इन स्टूडेंट्स के लिए. वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्लेज क्रिकेट, उन बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं उनमें से एक है एब्सेंट. तो ये जो प्लेज है ये इस स्टूडेंट्स के लिए है, ये स्टूडेंट्स उसका सब्जेक्ट बनेगा, इसलिए प्लेज नहीं प्ले होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. इफ नॉट प्लीज रिवाइंड एंड वॉच इट अगेन. नाउ मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मेनी ऑफ, अ नंबर ऑफ, वन ऑफ की जगह लगा होगा तो वो प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे ऑब्वियसली. मोस्ट ऑफ ज्यादातर, उनमें से ज्यादातर, में से कुछ, में से कई, में से एक पर्टिकुलर संख्या. तो वो एक से ज्यादा है तो उनको प्लूरल की तरह हम ट्रीट करेंगे. फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स इज बिजी. नो, आर बिजी. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिजी विद देयर प्रोजेक्ट्स. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम्स. नो, कम टू स्टडी एवरी डे. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम टू स्टडी एवरी डे. दिस इज केस 5 फॉर यू. लेट्स डू केस 6. मेनी अ. अब मेनी अ कैसा दिखता है? मेनी अ इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर एंड ट्रीटेड एज अ सिंगुलर. मेनी के बाद भी सिंगुलर लगेगा और वो पूरा का पूरा भी सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, मेनी अ मैन. अब मैन सही है, मेनी अ मेन नहीं होगा. अगर यहाँ पे मेनी अ मेन लिखा होता तो ये गलत हो जाता. मेनी अ मैन और फिर हैव नहीं होगा, सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो हैव की जगह क्या होगा? हैज सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन. मेनी के बाद अगेन फॉलोड बाय अ सिंगुलर, ट्रीटेड एज अ सिंगुलर. इफ वर.
सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इफ वी ऑलवेज यूज वर इन अ स्टेटमेंट इफ विद द सब्जेक्टिव मूड। अगर इफ से शुरू हो रहा है कुछ और आगे वाला जो पार्ट है उसमें पास्ट का कोई वर्ब है, जैसे वुड है पास्ट का, तो ये वॉज नहीं लगेगा, यहाँ पे हमेशा वर लगेगा, कुछ भी हो चाहे। इफ आई वर, इफ यू वर, इफ ही वर, इफ शी वर, इफ दे वर, इफ इट वर, इफ समबडी एल्स वर, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन हो, इफ के साथ वर लगेगा। अगर अगले पार्ट में जो भी बताया जा रहा है वो पास्ट में बताया जा रहा है तो, वरना नहीं, वरना फिर इफ आई एम हो जाएगा एंड आई विल। एंड वी हैव द लास्ट एक्सटेंशन फॉर इट। एक्सटेंशन का क्या मतलब? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमने देख लिया। सब्जेक्ट वर्ब के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है नंबर और पर्सन में, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, डिपेंडिंग based on that you will see whether or not the subject and verb are agreeing with each other. But now let's see what is the extension for it. For example, pronoun, जब कोई pronoun आ रहा है उसके बाद subject और verb और उसके बाद अगले वाला जो sentence, जो बाकी का sentence है उसमें कोई pronoun आ रहा है जो वापस subject के बारे में बात कर रहा है, subject को relate कर रहा है, तो उसमें भी agreement होना चाहिए फिर subject के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरी बात कर रहा हूं तो आगे अगर लगेगा तो मी लगेगा, अगर मैं किसी लड़के की बात कर रहा हूं तो उसके लिए ही लगेगा, किसी लड़की की बात कर रहा हूं तो उसके लिए शी लगेगा, अगर किसी थर्ड पर्सन प्लूरल की बात कर रहा हूं तो दे लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विल सी। या अगर पोजेसिव में लग रहा है तो हर, हिम, देयर, ये सब चीजें ध्यान रखनी होगी। कैसे? अब इसमें सिर्फ नंबर और पर्सन ही नहीं है, तीसरी एक और चीज आ गई है, जेंडर। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मैस्कुलिन, एक होता है फेमिनिन, एक होता है कॉमन और एक होता है न्यूट्रल। क्या मतलब होता है इनका? मैस्कुलिन भाई पुरुष, फेमिनिन मादा, कॉमन जेंडर हो गया जिसका कोई दोनों के लिए यूज होता है, जैसे स्टूडेंट, जैसे टीचर। ये जो शब्द हैं ये दोनों के लिए यूज होते हैं, चाहे पुरुष टीचर हो चाहे महिला टीचर हो, टीचर ही कहलाती है। चाहे पुरुष, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, विद्यार्थी विद्यार्थी ही कहलाता है, इंग्लिश में स्टूडेंट ही कहलाता है। और न्यूट्रल क्या हो गया? जैसे चेयर, टेबल, जिनका कोई जेंडर नहीं होता, जो वस्तुएं हैं जिनका कोई जेंडर नहीं है, जिसके साथ ही, शी नहीं लगता, इट लगता है। Fair enough। अब कॉमन की बात कहां आती है? कॉमन भाई आपका एग्जाम कहता है कि कॉमन जेंडर वाले हैं तो उनको हम मैस्कुलिन मानेंगे, अगर सिंगुलर में है तो वो हिम, हिज लगेगा, उनके साथ ही भी लगेगा, और अगर प्लूरल में है तो फिर दे लगेगा, एक्सेट्रा। उसमें हम लोग कॉमन जेंडर को हमेशा मैस्कुलिन मानेंगे सिंगुलर में। मैस्कुलिन तो मैस्कुलिन है ही, जैसे डॉग हो गया, और फेमिनिन फेमिनिन है, जैसे बिच हो गया, एक्सेट्रा। लायन, लायनेस, मैन, वुमन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये 4 तरह के जेंडर, ये भी नई चीज आ गई हमारी प्रोनाउंस को चेक करने में। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो कहां पे आ रहा है ये देखने में, द बॉय वॉज प्लेइंग विद देयर पेट, नो, द बॉय इज सिंगुलर, सिंगुलर मैस्कुलिन तो हिज पेट होगा। द गर्ल्स वर टॉकिंग टू हर मदर, नो, गर्ल्स प्लूरल, देयर मदर, प्लूरल आएगा। ईच मस्ट डू देयर ओन वर्क, नहीं, ईच होता है कॉमन जेंडर, प्लूरल उसको सिंगुलर मैस्कुलिन माना जाएगा, हिज ओन वर्क। या अगर आप थोड़े लिबरल बनना चाह रहे हैं तो हिज और हर कर दें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सही आंसर बताने के लिए नहीं बोला जाता है, आपको सिर्फ गलती टिक करने के लिए बोला जाता है। आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे गलती है, वही पर्याप्त है। एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर कन्विक्शन, नो। एवरी पर्सन अगेन ट्रीटेड एज अ सिंगुलर and singular common gender, that is why it will be treated as a plural masculine, so his conviction हो जाएगा। वहीं अगर आप लिबरल बनना चाह रहे हैं his और her कर दें, बहुत ज्यादा लिबरल बनना चाह रहे हैं हर पहले डाल दें, इससे ज्यादा लिबरल बनना चाह रहे हैं तो यूएस चले आए, यहाँ आपका कोई स्थान नहीं है। Alright, so we're done with this for today. The subject verb agreement. If there are any confusion or anything you might not have understood, please rewind, go back, ask in the comment section. We're always available to answer your doubts. And let's do the next half of the question paper from yesterday. Yes, from 31st to 50th. Alright, let's see what kind of questions we have from 31st to 50th now. Now usage of paired words. Paired words का confusing words. 2 words आपको देंगे जो एक जैसे लग रहे हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या क्या होता है? प्रिंसिपल एक तो आपका प्रिंसिपल होता है जो आपके स्कूल का प्रिंसिपल है, और एक दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट होता है जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक में। ये प्रिंसिपल हो जाते हैं आपके सिद्धांत। सो प्रिंसिपल मींस बिलीफ सिस्टम नहीं, प्रिंसिपल मींस हेड ऑफ नहीं, प्रिंसिपल मींस हेड ऑफ एजुकेशन नहीं, हाँ ठीक है, ओरिजिनल सम नहीं, प्रिंसिपल मींस मॉरल रूल, हाँ, प्रिंसिपल मींस हेड ऑफ, हाँ, ये तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा इसके लिए।
कि वो प्रिंसिपल सिद्धांत है. मॉरल रूल मींस मॉरल रूल और प्रिंसिपल मींस हेड ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट वी हैव प्लेन एंड प्लेन. अब प्लेन प्लेन क्या होता है? प्लेन एक तो एरोप्लेन होता है उड़ने वाला, और दूसरा होता है वो सपाट जमीन. और ये प्लेन क्या होता है? ये प्लेन होता है साधारण प्लेन. प्लेन बीए प्लेन क्या कर रहे हैं आप? बीए कर रहे हैं. बीए कौन सा? बीए प्लेन. और एनीवेज प्लेन मींस अ फ्लैट सरफेस एंड प्लेन मींस समथिंग दैट फ्लाइज. नहीं, प्लेन फ्लैट सरफेस है पर प्लेन तो नहीं होता समथिंग दैट फ्लाइज. अच्छा, प्लेन मींस फ्लैट सरफेस, प्लेन मींस नॉट इलैबोरेट. हाँ, नॉट इलैबोरेट. प्लेन मतलब साधारण, नॉट इलैबोरेट. इलैबोरेट मतलब शूशाय वाला, समथिंग दैट हैज अ लॉट ऑफ flair to it, a lot of flamboyance to it. Anyway, so B is the answer. Pail and pail. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. याद होगा आपको pail of water. वो एक जार होता है. ये pail क्या होता है? Pale color has become so pale. You become so pale. Anyway, let's see. Pale means faded or light in shade. Pale means inferior. No, pale means a bucket. Pale means faded. Yeah. See. So pale means a faded or light in shade. Faded or light means faded or light in shade. जो faded shade pale हो गए आप. पेल लग रहे हैं. और ये PAIL पेल मींस अ बकेट, जिसमें जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर. अब मेटल और मेटल देख रहे हैं. मेटल तो आपको पता होगा धातु केमिस्ट्री में, और दूसरा मेटल है आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपकी नहीं, आपकी दृढ़ता, आपकी मानसिक दृढ़ता, योर केपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग एक्सट्रीम स्ट्रेसेस, इमोशनल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेसेस, दैट इज योर मेटल. सो लेट्स सी वेयर इट इज. अच्छा, metal is hard shiny material, yes, but metal means malleable metal. No. Metal is a hard shiny, yes. Metal means metallic substance. No. Metal means resilience. Metal is hard shiny. No. Metal is hard shiny. Metal means mental resilience. Yes. Resilience मतलब आक्रमण के विपरीत आक्रमण को सह पाने की क्षमता, किसी भी प्रकार के आक्रमण को, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एटसेट्रा. सो रेजिलियंस, आप कितने रेजिलियंट हैं, कितने स्ट्रॉन्ग है आप अटैक के अगेंस्ट. और नाउ वी हैव हेल एंड हेल. वन हेल इज वो ओले, सिर मुंडाते ओले गिरे, हेल हो गया. और ये हेल हो गया हेल एंड हेल्दी. ये बड़े. सो लेट्स सी. ग्रीट विद हेल मींस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. पेलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन. यस, बी. हेल मींस पेलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन. पेलेट्स मतलब वो छोटे छोटे गोले जो ओले के होते हैं. एंड हेल मींस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. वेरी. कॉन्शियस एंड कॉन्शियंस. कॉन्शियस होता है जगा हुआ होना, मूर्छित ना होना, जगी हुई अवस्था में होना. अनकॉन्शियस होता है बेहोश. कॉन्शियस होता है होश में. और ये कॉन्शियस होता है अंतरात्मा. जैसे मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता मुझे कुछ करने के लिए. फॉर एग्जांपल, somebody is very fat, they will say no, I can't have samosa. My conscience doesn't allow me to do that. You will tell them your elastic doesn't allow you to do that either, let alone your conscience. Anyway, so conscious आपका होश हो गया, conscience आपकी अंतरात्मा हो गया. Conscious means alert and conscience means presence of mind. No, conscience means principle. No, make sense of right and wrong. Conscious ये D. So conscious means aware. पहला conscious aware कि आप होश में हैं. And conscience means sense of right and wrong, जो आपकी अंतरात्मा है, जो आपको बताती है सही और गलत क्या है, सही और गलत के बीच में अंतर बताती है. Alright, let's see the next. Dissent and dissent. So पहला dissent जो है DISCENT, ये होता है किसी चीज के विपरीत जाना, अपने पेरेंट्स के विपरीत जाना, किसी अथॉरिटी के विपरीत जाना, स्कूल के विपरीत जाना, सरकार के विपरीत जाना, एनीथिंग, कॉमन रिलीजन के विपरीत जाना, किसी चीज डिसेंट हो गया. और ये डिसेंट हो गया नीचे उतरना. सो पहला ही आप देखेंगे सही है. डिसेंट मींस हैविंग आइडियाज डिफरेंट फ्रॉम जनरल बिलीफ्स और ऑफिशियल पोजीशन, एंड डिसेंट मींस गोइंग टू अ लोअर प्लेस. ऑलराइट, नाउ वी हैव डिवाइस एंड डिवाइस. One is devise, which is a verb which means to do something, devise a plan, and one is device, which is a noun, which is yant. So let's see where it fits. Here, device means a piece of equipment made for accomplishing a specific task, and devise means finding a new way to do something. For example, devise a plan. Discrete and discrete. Discrete and discrete. One discrete, the first one is different in parts. For example, discrete positions of something. And one discrete is hidden. So ये छुप के करना कोई चीज, शांति से करना कोई चीज, बिना बताए करना कोई चीज, उसको डिस्क्रीटली करना कहते हैं. और दिस डिस्क्रीट, द फर्स्ट डिस्क्रीट इज सेपरेट इन पार्ट्स. अलग अलग होना किसी चीज का, उसको कहते हैं डिस्क्रीट. द डिस्क्रीट पार्ट्स ऑफ समथिंग. सो you'll see this one is the correct one. Discrete means separate and distinct categories of objects, and discrete means maintaining confidentiality. कि आप सीक्रेट रख रहे हैं, बात को कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं. एमिनेंट और इमिनेंट. अब ये एमिनेंट पर्सनालिटी होता है एक, कि
जैसे प्रधानमंत्री, द प्रधानमंत्री इज एन एमिनेंट पर्सनैलिटी, दैट मीन्स बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड और जाने माने, वेल नोन, फेमस पर्सनैलिटी। और इमिनेंट डेंजर होता है मतलब जो होना ही होना है, होने वाला है, कोई चीज जो होने वाली है इमिनेंट डेंजर के साथ यूज किया जाता है। इमिनेंट डेंजर मतलब बिल्कुल जो खतरा जो आने वाला है, खतरा आ ही रहा है जो। So eminent means important, eminent means something about to happen. A, you will see, is the correct one. Eminent means important and famous, and imminent means something about to happen. And mostly unpleasant, it means for unpleasant. But yes, that is the best option for this. Alright, let's move to antonyms now. Antonyms आपको opposite बताने हैं, हमेशा ध्यान रखना, ऊपर देख लेना हेडिंग क्या पूछ रहा है वो, नहीं समझ में पढ़ भी लेना कि ऑपोजिट बताना है आपको मीनिंग का। ज्यादातर ये गलती कर देते हैं बच्चे कहीं कहीं कि आपको पूछा ऑपोजिट जा रहा है और आप उसकी सिमिलर मीनिंग वाला लिखाए, या आपसे पूछा सिमिलर मीनिंग वाला जा रहा है और उसका ऑपोजिट टिक कराए। तो ऐसी ये केयरलेस मिस्टेक्स आप बिल्कुल ना करना कि आपको अगर मतलब पता है उसका। और ज्यादातर आप देखोगे 4 में से 3 ऑप्शन एक जैसे होते हैं और एक ऑप्शन अलग होता है, ज्यादातर वही सही होता है। जैसे यहाँ पे देखो भी मैलिएबल का ऑप्शन बताना है हमें। मैलिएबल आपको पता होगा फॉर मेटल्स दैट कैन बी बीटन इनटू शीट्स। Metals are also ductile, that can be drawn into wires. They're also good conductors of heat and electricity. You must remember all of that from physical chemical properties, I think, of metals and non-metals. So metals are malleable. That means they can be beaten into sheets. If they're hammered, if they're beaten, they can form into sheets. They don't shatter. They don't shatter like what do you call it? Splinter. They don't shatter and splinter. Splinter जो हमने पढ़ा था कल, एक word पढ़ा था, shatter and splinter like non-metals. So hard है, strong है, tender है, weak है, malleable है मतलब hard है। तो ये ऑपोजिट क्या होगा यहाँ पे बेस्ट इसका? हार्ड, कि भाई हार्ड है, मैल्युबल नहीं है, नहीं उसको शीट्स में बनाया जा सकता है। और टू निग्लेक्ट अ वार्निंग इज टू इनवाइट डेंजर। निग्लेक्ट मतलब नजरअंदाज करना। तो डिसरिगार्ड, इग्नोर, ओवरलुक सारे एक जैसे हैं, सब एक मीनिंग है। निग्लेक्ट, रिगार्ड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, क्योंकि एंटोनिम बताना है हमें। अब डिसरिगार्ड एंड इग्नोर, ओवरलुक तीनों सिनोनिम्स हैं किसके? निग्लेक्ट के। और एक एंटोनिम है रिगार्ड। His ostentatious behavior surprised everyone. Ostentatious मतलब बड़ा तड़क भड़क वाला, बहुत शूशा वाला, बहुत पैसा खर्च करके आपको शो ऑफ करने वाला। So ostentatious is show off. So modest. Again, all of these tawdry, apparent and gaudy will mean the same thing. कि a lot of show off वाला scene. And modest is सभ्य, सभ्य सा काम जो होता है। Alright. The experience of COVID pandemic was excruciating for much of the population. Excruciating मतलब बड़ा दुखदाई था भाई। तो all of them are same, gnawing, grueling, harrowing, all of them mean the same. बड़ा दुखदाई, अलग ना किसी तरीके से दुखदाई मतलब होता है इनका। And mild is की कम, भीना सा। So excruciating का opposite will be mild here. Achieved to the health was refreshing तरोताजा करने वाला। So wearying here. Rejuvenating, revivifying, all of them mean the same thing. Conniving का कुछ अलग मतलब होता है। Conniving का मतलब होता है षड्यंत्र रचने वाला। For example, Mama Shamuni was a conniving man. For example. Anyway, wearying सही होगा यहाँ पे opposite इसका। wearying हमने पहले भी देखा था। weary task from I think the previous lesson. Try going back to the previous lesson and see कि कहाँ पे wearying बताया गया था lesson 1 में। अच्छा, comprehension की बात है अब ये। So this is something that I want you to do by yourself. Read the comprehension. See if you can answer these questions in the comment section, and let's see if somebody comes up with the perfect answers to these. Comprehension is something that we would not have time for during the crash course. अपने आप में वो एक पूरा 100-200 घंटे का काम होता है। आपको ये अपने समय पे ही करना होगा। comprehension के जितने भी previous years के question papers में comprehension आए हैं वो पढ़ते रहें, उनको करें। The answers, check for the answers. Most of the answer sheets are available online as well. So do the comprehension in your own time and let me take care of all the concepts in grammar. Thank you so much for joining in today, and I will see you in the next one. All right, we're done.